Hello and welcome back to the channel. So today we are going to start a new tutorial on React and we will see the project directory of our React app, which is my app. Okay, so before starting the React tutorials in more details, we should be familiar with the project directory as well as the environment in which we are going to study React. So you can see that this is your VS Code, and on the left side we have this my app folder, and it contains some folders as well as some files. Okay, so we will start from the top. So we have this node modules and we don't have to touch this folder. Okay, it contains all the dependencies which are useful for our React app. So when we install, and these node modules get installed automatically when we run npm install. Okay, so we don't have to do anything in this folder. Then the next is your public folder. Okay, and this also gets installed automatically, and in this public folder we keep those files which are static. Okay, as for example, you can see we have one icon, white.svg. so if we click this, you will see white icon. So you can see this white icon, right? So all the static files we keep in public. Static files like index.html, अगर हम ये चाहें तो हम index.html को भी public folder के अंदर रख सकते हैं. Okay, या कोई और HTML फाइल है. Also we keep images in this public folder. Okay, then the next is your source folder. All right, now the next is your source folder. Okay, so this source folder mainly contains all your React code files. Okay, it has one assets folder, and this asset folder contains images, icons और any font file. Okay, so वो हम लोग assets के अंदर include करते हैं. तो अब इसका फ़ायदा क्या होता है? When we include image, icons और any large image file, so React जो है using React और Webpack वो उसे एक बंडल के फॉर्म में क्रिएट करता है. ओके, सो दैट इज़ द ऑप्टिमाइज वर्जन ऑफ योर इमेज. ओके, सो उससे क्या होता है, फास्ट लोडिंग होती है ब्राउज़र पे. ओके, हमारी जो भी एसेट्स हैं. एंड मेन डिफरेंस पब्लिक और एसेट्स फोल्डर में क्या है, पब्लिक फोल्डर में हम जो भी इमेज या फाइल या आइकन इमेज इंक्लूड करते हैं वो बार बार पेज के लोड होने पे लोड होती हैं. ओके, सो इट टेक्स योर बैंडविड्थ एंड इट टेक्स योर टाइम. और एसेट फोल्डर में हम जो भी इमेज या फॉन्ट या आइकन इंक्लूड करते हैं वो तभी लोड होंगे जब उनकी ज़रूरत होगी. ओके, सो इट सेव्स योर बैंडविड्थ एज वेल एज योर टाइम. ओके, ऑल्सो सपोज एसेट फोल्डर में आपने react.svg इंक्लूड किया है. ओके, और इसको मैंने app.jsx में इंपोर्ट किया, राइट, बट मैंने उस react.svg इमेज को यूज़ नहीं किया. लाइक यहाँ पे आप देखिए कोड में react.svg को इंपोर्ट किया गया है लाइन नंबर 2 पे, और फिर उसको लाइन नंबर 16 पे यूज़ किया गया है. सो अगर मैं इसको यूज़ ना करूँ यहाँ पे, ओके, लाइन नंबर 16 पे मैं इसको यूज़ ना करूँ तो हमारा जो रिएक्ट बंडलर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, इस react.svg को फाइनल बंडल में ऐड ही नहीं करेगा. ओके, तो अगर आपने इंपोर्ट किया है बट अगर आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हो, सो ड्यूरिंग बंडलिंग ऑफ द कोड वो उन चीज़ों को हम इसे ट्री शेकिंग बोलते हैं. ओके, तो ट्री शेकिंग में जैसे कि आप समझ लो जैसे पुराने पत्ते होते हैं, राइट, अगर आप ट्री को हिला दो तो वो जड़ के गिर जाते हैं. सेम वे यहाँ पे होता है, जिनका यूज़ नहीं हो रहा है वी यूज़ ट्री शेकिंग एंड दोज import assets are removed from the final bundle. So this helps faster bundling and faster optimization of the React code. Okay, all this is happening in the background. So this was the difference between public folder and assets folder. Now we have app.css. तो ये हमारी app.jsx फाइल को स्टाइल करने के लिए है. देन वी हैव index.css. ये हमारा index.html फाइल को स्टाइल करने के लिए यूज़ होती है. ओके, देन वी हैव main.jsx फाइल. सो दिस इज़ द मेन फाइल. हमारा जो भी डोम की रेंडरिंग होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है. ओके, यू कैन सी दैट ऑन लाइन नंबर 8 वी हैव पास द ऐप कंपोनेंट. ओके, तो जब हम कंपाइल करते हैं तो हमारा सबसे पहले main.jsx फाइल ही कंपाइलर ढूंढता है. ओके, सो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट and after this app.jsx is used. Okay, now the next is git ignore file. Okay, so इसके अंदर हम लोग उन फाइल्स या फोल्डर्स को इंक्लूड करते हैं जिन्हें हम गिट पे कमिट नहीं करना चाहते, मीन्स ऐड नहीं करना चाहते या अपलोड नहीं करना चाहते. ओके, सो लाइक वी हैव सम लॉग्स फाइल्स. ओके, देन वी हैव लॉग फाइल ऑफ npm, yarn एंड pnpm. सो हमारी जो भी एरर्स वगैरह या जो भी डिबग लॉग्स हैं, ओके, वो सब हम गिट इग्नोर में इंक्लूड कर देते हैं जिससे कि ये सब गिट पे अपलोड ना हो. ओके, देन नोड मॉड्यूल्स. सो ये जो हमारा फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स, इसको भी इग्नोर करते हैं. क्यों करते हैं,
क्योंकि जब हम लोग npm इंस्टॉल रन करते हैं तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है और इसका साइज़ भी ज़्यादा होता है। ओके, सो हम लोग इसे भी गिट इग्नोर में इंक्लूड करते हैं। देन वी हैव dist ssr, सो ऑल दिस इज सर्वर साइड रेंडरिंग जो भी होती है उससे रिलेटेड फाइल्स होती हैं। ओके, लाइक जब हम लोग बिल्ड करते हैं अपने कोड को राइट फॉर प्रोडक्शन, तो जो हमारा ऑप्टिमाइज कोड होता है वो इस डिस्ट फोल्डर के अंदर स्टोर होता है। सो उसे भी हम लोग गिट इग्नोर में इंक्लूड कर लेते हैं। कोई अगर लोकल एनवायरनमेंट फाइल है ओके जिसमें कुछ सेंसिटिव डेटा हो ओके, सो उसे भी हम लोग इग्नोर करते हैं गिट पे अपलोड करने से। ओके, then we have some directories and files of editor like VS Code extension, okay, and all other these different types of files and directories. So हमें जिन चीज़ों को इग्नोर करना है उन्हें हम git ignore में इंक्लूड कर देते हैं। ओके, जिससे हमारा git पे ये अपलोड ना हो। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ git, ओके, देन वी हैव ESLint डॉट। सो ये जावास्क्रिप्ट में लिंटिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, लिंटिंग मीन्स कोई अगर एरर है ओके या कोई फॉर्मेटिंग मिस्टेक है ओके या कोड में कोई प्रॉब्लम है ओके, सो eslint.config.js फाइल हमारा जो eslint टूल है ओके ये उसे बताती है कि आपको किस तरह से जावास्क्रिप्ट के कोड को चेक करना है। ओके, सो यहाँ पे रूल्स वगैरह सब डिफाइन है। ओके, यू कैन सी रूल्स, कौन से प्लगइन्स यूज़ हो रहे हैं ओके, देन किन चीज़ों को इग्नोर करना है, देन पार्सर कौन सा यूज़ करना है ओके, और हम चाहें तो इसमें अपने खुद के भी कस्टमाइज रूल्स इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, then we have index.html file, so this is the file which we see on the browser window. Okay, this is the file. Then we have package log.json file. So package log.json को समझने से पहले हमको ये देखना होगा package.json. So package.json क्या होती है, आई होप सबको मालूम होगा। इट इज़ द मेटा डेटा ऑफ योर होल प्रोजेक्ट राइट। इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट का नाम राइट, वर्जन, टाइप्स, स्क्रिप्ट्स वगैरह जो भी हैं, जो भी डिपेंडेंसीज हम यूज़ कर रहे हैं लाइक रिएक्ट 19 वर्जन, रिएक्ट डोम वर्जन 19, देन डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज जो हम यूज़ कर रहे हैं लाइक ESLint राइट वर्जन 9.21 वाइट। सो ये क्या है, ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट का मेटा डेटा है। ओके, प्रोजेक्ट लाइसेंस होता है इसमें, प्रोजेक्ट ऑथर। ओके, सो पैकेज log.json क्या करता है, इस पूरे मेटा डेटा को लॉग कर लेता है। ओके, अब अगर कोई हमारे इस प्रोजेक्ट को क्लोन करेगा राइट, तो हमने जो जो चीज़ें यूज़ करी हैं सेम चीज़ उसको इंस्टॉल होंगी, जिससे कि किसी भी तरह का कोई डिफरेंस ना आए ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ओके, सो अगर कोई अदर डेवलपर इस प्रोजेक्ट को क्लोन करता है या पुल करता है गिट पे, तो सेम वर्जन का npm इंस्टॉल होगा। ओके, सेम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होंगी, सेम डेप डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होगी उसके पास राइट। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ पैकेज log.json। okay, then you have your readme.md file which is the documentation file of your project। okay, so you can read it, it has some details, and finally you have white.config.js file। so this is the file for white। okay, हम लोगों ने जो white इंस्टॉल किया ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसमें हमारा बिल्ड और डेवलपमेंट की सेटिंग्स जो हैं वो डिफाइन होती है। ओके, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन कॉन्फ़िग फंक्शन का यूज़ किया है और प्लगइन्स में रिएक्ट को यूज़ किया है, रिएक्ट प्लगइन। सो ये क्या करेगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी फंक्शनैलिटी को और एक्सटेंड करेगा। ओके, ऑल्सो डिफाइन कॉन्फ़िग फंक्शन क्या करता है, टाइप सेफ्टी के लिए यूज़ होता है एज वेल एज ऑटो कंप्लीशन के लिए भी यूज़ होता है। ओके, ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी ऑफ योर रिएक्ट प्रोजेक्ट ऐप। ओके, एंड वी हैव सीन what all these files and folders are used for. Now in the next tutorial we will start from basic. So if you have not still subscribed the channel, then subscribe it because it's going to be an interesting tutorial series and we will be using the latest version of React as well as Vite. So मिलते हैं next tutorial में, till then goodbye and thank you.